Good morning, students. Today we will learn on the chapters string manipulations explanation part. What is string? String is a collection of alphanumeric characters enclosed in double quotes. So alphanumeric means it may be alphabets as well as numbers, but it must be enclosed in double quotes. For example, SKPS, see, collection of alphabets enclosed in double quotes. So this is an example of string. Next example is India. It is also enclosed in its double quotes, so it is also a string value. Next, 123, number but enclosed in double quotes, it is a string value. Next, work hard, collection of alphabets enclosed in double quotes, it is also a string value. 5, number but enclosed in double quotes, so it is a string value. Similarly, SKPS, it may be small letters, capital letters, no problem. See, true but enclosed in double quotes, so it is a string value. But true without double quotes, it is a boolean values. We understand the difference between these two. True with double quotes is a string value, true without double quotes is a boolean value. Another example is pin code. Suppose here pin code, number, alphabets and numbers both combined, but it is a string value. Star, double quotes, string value, star and question mark in double quotes, string value. Single star, double quotes, string value. See here 5, but enclosed in single quotes, so it is not a string value. It is not a string literal, it is a character literal. Now before doing the program on string, we have to understand the various functions of strings. So string library functions is also called predefined functions. So before understanding, see, in standard 9 we studied various mathematical functions. Suppose math.max, so we know what is the role of this function max. It takes two arguments. This is whatever we keep in bracket, this is open bracket of the functions and close bracket. So whatever we keep inside the bracket, it is known as arguments or parameters. So math.max always takes two parameters. We have passed 5 and 9, and whichever is bigger, it will return it, and that will be stored in the variable m. So which is bigger, 5 and 9? So 9m has the value 9. We have studied in standard 9. Another function is math.sqrt. So we know what it does. It finds the square root of a number provided in a bracket. So 16. So square root of 16 is 4.0. See, so you cannot store in int because it returns a point value. So some function may have integer return type, some function may have double return type. So be careful on the return type. Now, as we have understood these functions, math.max and math.sqrt, now we will learn about the various string functions. So number one function is length. So what it does, it finds the number of characters present in the string. So see, I have taken an example, string s. We create a string variable like this, data type. String is a data type, capital S, be careful, s is a variable, equal to, we have stored the string value skps in double quotes. So s is now holding a value skps. Now we are using the function's length. So how we have to use? Variable, s is the variable, dot function name. Now why we have used? Because we have to find the number of characters present in the variable s. So s dot length means how many characters are in the variable s. So count 1, 2, 3, 4. So 4 value will be stored in a variable L. Now 4, which type of value is this? Because we know 4 is the int value, integer value. So return type of this function is we have stored in the data type int. So that's why we have to decide whatever type of value the function is returning,
variable data type will be that only. Next function is another function, same example, functions example is work hard. So suppose I have stored in a variable as work hard. Now what we are doing, we are again finding the length. Length means number of characters present in the string s, work hard. So see s dot length. So count how many characters are there. 1, 2, 3, 4, space also a character, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 characters are present in this string. So it is returning the value 9. See, variable name can be anything. You can take A, B, C, D, P, Q, L, whatever. But as it is returning the integer value, so its data type must be int. Be careful with this. Now next function is caret. So caret, what it does, it takes out the character at a specific positions. What is the function of this one? This function takes out a single character from a specific positions. So what is positions? To see every string has, every letter of a string has unique positions. The first letter starts with 0 position. Suppose escape is a string. So S first letter, its position always starts with S 0. Next letter, as we move on, its position will increase by 1. So K position is 1, P position is 2, S position is 3. Like this way, if more characters are there, its position will keep on increasing by 1. Now, S means skps dot caret. Caret why we are using? Because we have to take out a character. And in the bracket, what we have to provide? We have to provide at from what position we have to take out. So I have written here 1. So what is the character at the position 1? What is that? That is K. So K we have stored in a variable A. Now K, you tell which type of value is this one? K single letter. Single letter means char. So here data type is char. Be careful here. Data type is very important. You can take any variable, but what type of value it is returning, that data type you must have to use. Another example is same S is skps dot caret. Now what we have to do, we have to take out the character present at the position 2. So S means skps only, because S is holding the value skps. So what is the character at 2 positions? So 0, because strings always start with position 0. So 0, 1, 2. So at 2 position, what is the letter? P. So P is stored in the variable R. Now P, which type of value? It is a what? Character value. So R is a variable whose data type is char. Next function is, see one more example of string, a caret function. Suppose in S we have stored the string computer. We know the strings position always start from 0. So C ka first letter is it. So position is 0. फिर O1, M का position is 2, P3, U4, T5, E6 or last letter are 7. Now S dot caret 4. So what is the letter present at the position 4? So what is the 4th position? Mein U. So U is stored in the variable B. So B, which type of value? U. Again it is a char. So data type of B variable is char. Means caret always takes a integer parameter. As we know, whatever we keep in the bracket, it is called argument or parameter, and it always return a which type of value? It returns a char value. These 2 points we have to always keep in mind, what and how many parameters the function takes and what type of value it is returning. These 2 are very important. Next function, again example you see, S is again computer, caret 6. What is the character present at the position 6? 6th position is, see, you can see here, what? E. So it will return E. Again E is the character. So data type of this function is, we have stored C in the data type char. Now come to the next functions. Next function is index of. So another function, index of. Index means positions. So what it does, it gives the positions of a character. Index means position, or what we have to provide, pass in a bracket character. So whichever character we will pass from the string, it will return, it will give the position of that character. Suppose example, string S equal to skps. Again we have stored one string skps. Now S dot index of.
means I want to find the position. Index means position of which letter we have to provide in the bracket, that is P. So find out what is the position, because position always starts from 0. So S का position is 0, K का 1, P. What is the position? 2. So 2 is stored in the variable B, or since B ये 2 is the int value, so its return type is always int. Index of always gives a integer value. Another example you can see, suppose string S equal to work hard. Work hard. Now S dot index of, तो whenever index means position, किसका position, whose positions? A. तो A where it is, तो you write the positions. तो W first letter 0, वो 1, R2, 3. See this space, it also has position. तो 4, H5, A 6. तो this A, तो इसका position is what? 6. तो it will return 6, and 6 is stored in the variable. नेक्स्ट फंक्शन है लास्ट इंडेक्स ऑफ. ये फंक्शंस फाइंड करता पोजीशन ऑफ द लास्ट पोजीशन ऑफ द स्पेसिफिक कैरेक्टर्स विच इज प्रेजेंट एट द लास्ट. कोई स्पेसिफिक कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर का लास्ट पोजीशन देता है आपका. सपोज यहाँ पर एस में मलयालम स्टोर है, तो एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो हमको एल का लास्ट वाला एल का पोजीशन वी हैव टू फाइंड आउट. तो लास्ट एल का पोजीशन ये देखो यहाँ पे, व्हाट इज लास्ट एल. यहाँ पर भी एल है, फर्स्ट एल यहाँ पर मिला, लास्ट एल यहाँ पर है, तो इसका पोजीशन क्या है? 6. तो 6 स्टोर हो गया पी में. और अगेन पोजीशन, क्योंकि इंडेक्स हमेशा पोजीशन होता है, तो इसका रिटर्न टाइप, इंडेक्स मीन्स पोजीशन, तो रिटर्न टाइप हमेशा इंट वाला होता है, तो पी का वैल्यू 3 हो गया, तो रिटर्न टाइप आपका इंट. वन पॉइंट हम आप लोग को बता दें स्टूडेंट्स, कि जब भी फंक्शंस लिखोगे डॉट के बाद हमेशा फंक्शंस का नाम आता है. तो फंक्शंस में जितना भी वर्ड्स रहेगा, रूल क्या है आपका, कि फर्स्ट वर्ड का एवरी लेटर स्मॉल होगा, उसके बाद जितना भी वर्ड्स होगा सब वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा. सपोज डॉट के बाद देखो लास्ट इंडेक्स ऑफ है, तो पहला वर्ड लास्ट है, तो हर वर्ड हर लेटर स्मॉल, फिर उसके बाद जो वर्ड आ रहा है इंडेक्स उसका आई कैपिटल है, ऑफ का ओ कैपिटल है. दिस इज द रूल ऑफ राइटिंग द फंक्शंस. अगर आप नहीं लिखोगे तो इट विल शो यू एरर, और मार्क्स भी आप लोग का कट जाएगा आपका. सी यहाँ पर आप देखिए, आपका यहाँ पर इंडेक्स ऑफ है तो एल, तो इंडेक्स ऑफ क्या करता है, पहला एल का पोजीशन बताता है, तो पहला एल का पोजीशन क्या है? 2 है, इसलिए ये आपका 2 बता रहा है आपका. सपोज नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप लोग, स्ट्रिंग एस में वर्क स्टोर है ना, लास्ट इंडेक्स ऑफ आर. तो यहाँ पर देखेंगे कि आर एक ही बार है, सिंगल टाइम प्रेजेंट है आपका, तो उसका क्या पोजीशन है? 2 है, तो 2 आपका टी में स्टोर हो गया. इंडेक्स ऑफ आर, क्योंकि आर तो एक ही बार है, तो उसका क्या पोजीशन है? 2, तो वो भी आपका इसमें ए में स्टोर हो गया. मीन्स अगर कोई भी लेटर एक ही बार रहता है कोई भी स्ट्रिंग में, तो लास्ट इंडेक्स और इंडेक्स ऑफ दोनों आपका सेम पोजीशन देता है, सेम आंसर देता है. नेक्स्ट फंक्शन में आते हैं हम लोग, इक्वल्स. तो क्या करता है ये फंक्शंस, ये चेक करता है वेदर द 2 स्ट्रिंग्स आर सेम और नॉट. तो सपोज इफ द 2 स्ट्रिंग्स आर सेम इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स. तो सपोज स्ट्रिंग ए में कैट है, स्ट्रिंग बी में भी कैट है, तो सेम मीन्स एग्जैक्टली जो लेटर इसमें है इसमें भी वही होना चाहिए, केस भी सेम होना चाहिए, और सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए, तभी ये इक्वल सेम होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा, नहीं तो आंसर रॉन्ग देगा, फॉल्स में देगा आपका. सपोज ए में आपका कैट है, बी में आपका कैट है, देखिए तो क्या ये दोनों स्ट्रिंग सेम है? हाँ, देखिए इसमें भी लेटर्स कैट है, इसमें भी लेटर CAT है, सीक्वेंस भी सेम है और केस भी सेम है, तो इसीलिए ये फंक्शंस इक्वल्स आपका ट्रू दिया. ट्रू किस तरह का वैल्यू होता है? बुलियन, तो इसका रिटर्न टाइप आपका बुलियन होता है आपका. अनदर एग्जांपल देखते हैं हम लोग, स्ट्रिंग ए में आपका कैट है, स्ट्रिंग बी में ACT एक्ट है, तो ये क्या फंक्शंस, ये फंक्शंस क्या रिटर्न करेगा? क्या कैट इज सेम एज एक्ट? सी लेटर सेम है बट सीक्वेंस इज डिफरेंट, मीन्स बोथ आर नॉट सेम, तो इसलिए इसमें फॉल्स आ गया आपका. इसमें आते हैं आपका, स्ट्रिंग ए में कैट है, स्ट्रिंग बी में कैट है, लेकिन इसमें देख रहे हैं हम लोग कि हमें कैपिटल लेटर्स है, लेकिन यहाँ पर स्मॉल में भी दिया हुआ है, तो बिकॉज केस आर नॉट सेम,
तो अगेन ये क्या करेगा, आपको फॉल्स देगा आपका, तो फॉल्स आपका बुलियन डेटा टाइप में आता है। नेक्स्ट फंक्शन है इक्वल्स इग्नोर केस। अगर आप चाह रहे हैं कि केस को इग्नोर कर दें, आप अपर केस लोअर केस को इग्नोर कर दें, तो हम लोग ये फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए स्ट्रिंग ए में कैट है, लेटर सेम है, सीक्वेंस भी सेम है, लेकिन केस डिफरेंट है, तो केस को ये इग्नोर कर देता है। तो ये फंक्शंस आपका क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा आपका, बिकॉज बोथ आर कैट है, लेकिन सीक्वेंस भी सेम है, लेकिन केस डिफरेंट है, तो नो प्रॉब्लम, तो ट्रू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट फंक्शंस में आते हैं, देखिए फिर एक और एग्जांपल है, सी में कैट है, डी में एक्ट है ना, सी डॉट इक्वल्स इग्नोर केस। तो लेटेस्ट तो ये दो बोथ द स्ट्रिंग तो सेम नहीं है, यहाँ पे कैट है, एक्ट है, तो इसलिए ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो इक्वल्स इग्नोर केस का भी रिटर्न टाइप आपका बुलियन होता है आपका। नेक्स्ट फंक्शंस में आते हैं हम लोग, सब स्ट्रिंग। ये सब स्ट्रिंग क्या करता है, ये फंक्शंस हम लोग कब यूज़ करेंगे, जब एक से ज़्यादा लेटर हम लोग को निकालना होगा आपको कोई स्ट्रिंग से। सपोज स्ट्रिंग एस में कंप्यूटर स्टोर है, तो अब हमको जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सब स्ट्रिंग 3, तो थर्ड पोजीशन से ये स्टार्ट करके एंड तक निकालेगा ये आपका। तो थर्ड पोजीशन कौन से लेटर में आ रहा है, पी में आ रहा है, तो ये पी से स्टार्ट करके लास्ट तक, एंड तक, तो क्या निकला आपका, पी से लेके एंड तक प्यूटर, तो ये प्यूटर आ गया आपका। अब प्यूटर क्योंकि एक से ज़्यादा लेटर्स है, तो इसलिए इसका रिटर्न टाइप हो गया स्ट्रिंग, तो रिटर्न टाइप आपका स्ट्रिंग हो गया आपका। सिमिलरली सेम एग्जांपल में 5 लिखा हुआ है, तो सब स्ट्रिंग, तो अब ये 5th पोजीशन से स्टार्ट करें, तो 5th पोजीशन मीन्स टी से, तो टी से लेके लास्ट तक, तो टी से लेके लास्ट तक क्या है, टर, तो इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होता है। कभी सब स्ट्रिंग्स आपका 2 पैरामीटर्स लेता है, 2 वैल्यूज। सपोज एस में वही है, कंप्यूटर है 3,6, तो अब ये थर्ड पोजीशन से स्टार्ट करेगा, लेकिन जब सेकंड पैरामीटर रहेगा तो उससे एक कम तक लेता है। तो यहाँ पे देखिए 3, मैंने हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, पी से, पी से स्टार्ट करना है, लेकिन 6 दिया हुआ है सेकंड पैरामीटर, तो 6 से एक कम तक, तो 3 से लेके 5 तक, तो क्या पार्ट निकला आपका, पुट निकला। तो ये आपका क्या किया है, पुट आपका स्टोर कर दिया है इस वेरिएबल में, आर में आपका। अनदर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, सपोज स्ट्रिंग ऑनेस्टी है केस में, उसमें से हमको नेस्ट निकालना है, नेस्ट, तो हमको देखिए एन से स्टार्ट करना है, लेकिन लास्ट तक नहीं जाना है हमको कुछ मिडिल पार्ट निकालना है, बीच वाला पार्ट, तो इसलिए हमको 2 वैल्यू पास करना होगा। तो कहाँ से स्टार्ट करना, एन, तो एन क्या पोजीशन है 2, कॉमा, और कहाँ तक निकालना है हमको, टी तक, तो उससे एक ज़्यादा पोजीशन डालेंगे, तो 6, तो 6 मीन्स 6 जो भी पोजीशन होगा उससे एक कम तक, तो 6 से एक कम मीन्स 5 तक, तो 2 से 5 तक में क्या लेटर्स है, तो 2 मीन्स एन और 5 मीन्स टी, तो एन से लेके टी तक ये निकाल के इसमें स्टोर कर दिया आपका। नेक्स्ट फंक्शन है कंपेयर टू। ये कंपेयर टू क्या करता है आपका, ये 2 स्ट्रिंग्स का एस की वैल्यू का डिफरेंस ये देता है। एस की वैल्यू हम लोग को पता है इंट वाला वैल्यू होता है, तो सपोज स्ट्रिंग ए में एसिड है, स्ट्रिंग बी में एबिड है, तो ए डॉट कंपेयर टू बी, तो पहला स्ट्रिंग ए है तो उसको हम लोग अप में लिखेंगे, दूसरा स्ट्रिंग बी है उसको हम लोग डाउन में लिखेंगे। अब हम लोग को करना क्या है कि उसका एस की वैल्यू माइनस करना है, तो एक एस की वैल्यू 65, एक इसका भी 65, तो माइनस होकर 0 हो गया। फिर आएंगे जब 0 होगा तो आगे हम लोग बढ़ेंगे हम लोग, तो सी का एस की वैल्यू 67 और बी का एस की वैल्यू 66, तो 67 माइनस 66 क्या हुआ 1, तो जैसे नॉन जीरो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा, उसके आगे हम लोग को नहीं जाना है, इसलिए इसका आंसर हो गया आपका, इसका जो आंसर आया है 1 के में स्टोर हो गया, और 1 आपका किस तरह का वैल्यू है, इंट, इसलिए हमेशा रिटर्न टाइप हमेशा इंट होता है इसका। दूसरे एग्जांपल में आते हैं, सपोज एंड डॉट कंपेयर टू, फिर एंड है, यहाँ पर भी एंड है, कंपेयर टू जब भी रहेगा इसकी वैल्यू माइनस होगा, तो करते हैं कि पहला लेस को पहले लिखिए, दूसरा वाले को, तो कैपिटल ए माइनस कैपिटल एस 0, कैपिटल एन माइनस कैपिटल एन 0, और कैपिटल डी माइनस कैपिटल डी 0, तो पूरा 0 होगा, तो ये आंसर आपका 0 देगा आपका। अगर हम लोग इंटरचेंज करते हैं, सपोज बी है, अब देखिए यहाँ पर बी को पहले लिखा, बी मीन्स ABID लिखा गया है,
और यहाँ पर ए, यहाँ पर एसिड लिखा हुआ है, तो मीन्स ए भी ऊपर जाएगा, एसिड नीचे जाएगा, तो बी माइनस सी, तो दोनों का डिफरेंस हो गया -1, एस की वैल्यू का डिफरेंस -1, तो इसलिए -1 हो। दूसरा फंक्शन है आपका कॉनकैट फंक्शन है आपका। कॉनकैट फंक्शन क्या करता है, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने का काम करता है। तो सपोज ए में है, देखिए वर्क है, बी में हार्ड है, तो ए डॉट कॉनकैट, तो ए में वर्क है, वर्क के लास्ट में दूसरा स्ट्रिंग जो भी पैरामीटर्स वाला स्ट्रिंग रहेगा वो ज्वाइन हो जाएगा। तो मेरे को आंसर क्या मिला, वर्क हार्ड। तो वर्क हार्ड सपोज ए स्ट्रिंग वाला वैल्यूज है, इसलिए इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होता है आपका। अगर हम लोग पोजीशन चेंज करते मतलब बी पहले लिखते हैं और ए को बाद में लिखे, तो बी डॉट कॉनकैट ए, तो बी में क्या है, हार्ड, तो हार्ड के बगल में फिर वर्क आपका ज्वाइन हो जाएगा, तो ये बन गया हार्ड वर्क। हम लोग दूसरा मेथड से भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो है प्लस ऑपरेटर। स्ट्रिंग में प्लस क्या करता है, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने का काम करता है। तो ए में क्या है, वर्क है, बी में हार्ड है, तो दोनों को ज्वाइन करके वर्क हार्ड हो गया आपका। नेक्स्ट फंक्शन है स्टार्ट्स विथ। तो नाम ही से समझ में आ रहा है, ये चेक करता है कि कोई स्ट्रिंग कोई पर्टिकुलर ये स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। सपोज स्ट्रिंग ए में क्या स्टोर है, कंप्यूटर स्टोर है। अब हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ए कंप्यूटर स्टार्ट्स हो रहा है किससे, COM से। तो सी देखिए ए में क्या स्टोर है, कंप्यूटर, तो क्या कंप्यूटर कॉम से स्टार्ट हो रहा है, हाँ देखिए कॉम से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर इससे स्टार्ट हो रहा है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अगर नहीं स्टार्ट होगा तो ये फॉल्स देगा। तो क्योंकि है ना ट्रू, तो ट्रू किस तरह का वैल्यू होता है, बुलियन। तो अब वो स्टोर हो गया, आर में ट्रू स्टोर हो गया, तो डेटा टाइप आपका बुलियन, क्योंकि ट्रू और फॉल्स, तो इसलिए इस फंक्शन का रिटर्न टाइप बुलियन होता है। फिर वही देखिए ए में कंप्यूटर है, क्या कंप्यूटर CO से स्टार्ट हो रहा है, हाँ देखिए CO से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी आपका ट्रू देगा। ये C लिखा हुआ है, तो क्या ए में क्या स्टोर है, कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर C से स्टार्ट हो रहा है, हाँ C से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी ट्रू देगा। यहाँ पे देखिए ए डॉट स्टार्ट, तो यहाँ पे इसमें स्मॉल c लिखा हुआ है, लेकिन ये स्टार्ट किससे हो रहा है, कैपिटल C से, तो ये फॉल्स देगा आपका। क्या कंप्यूटर कॉम से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए C कैपिटल OM स्मॉल है, लेकिन यहाँ पर OM क्या है, कैपिटल में, तो इस स्मॉल हो गया, तो इसलिए भी फॉल्स देगा। नेक्स्ट फंक्शन है एंड्स विथ। सेम फंक्शन है, ये लास्ट में होना चाहिए कि कंप्यूटर सपोज अगर लास्ट में कोई स्ट्रिंग है उससे स्टॉप हो रहा है, एंड हो रहा है, तो ट्रू देगा, नहीं हो रहा है उससे तो ये फॉल्स देगा। सपोज स्ट्रिंग ए में कंप्यूटर है, तो ए डॉट एंड्स विथ, तो क्या ए मीन्स कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर आपका एंड्स विथ टर से एंड हो रहा है, लास्ट में है, देखिए हाँ टर है, तो इसलिए ये ट्रू देगा। इसका भी रिटर्न टाइप बुलियन होता है। अगर वही लिखते हैं ए डॉट एंड्स विथ TER, तो लास्ट में तो टर है, टी कैपिटल, लेकिन यहाँ पर स्मॉल में दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या है, इस कैपिटल में है, तो ये क्या करेगा, फॉल्स देगा आपका। नेक्स्ट फंक्शन है आपका टू लोअर केस, है ना। टू लोअर केस ये क्या करता है, स्ट्रिंग को लोअर केस में, स्मॉल केस में कन्वर्ट कर देता है। सपोज स्ट्रिंग ए में कैपिटल में इंडिया स्टोर है, तो ए डॉट टू लोअर केस, तो पूरा स्ट्रिंग को क्या करेगा, स्मॉल में चेंज कर देगा आपका। तो देखिए, तो क्या कन्वर्ट होकर क्या मिला, स्मॉल इंडिया, तो स्टोर किस में हो गया, बी में, तो वैल्यू किस तरह का, स्ट्रिंग वैल्यू है ना, तो इसलिए इसका रिटर्न टाइप हो गया स्ट्रिंग आपका। नेक्स्ट फंक्शन है टू अपर केस, ये क्या करता है, स्ट्रिंग को अपर केस में चेंज कर देता है आपका। सपोज स्ट्रिंग ए में कंप्यूटर स्टोर है आपका स्मॉल में, तो ए डॉट टू अपर केस मीन्स ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो मेरे को क्या मिला, कंप्यूटर अपर केस में कन्वर्ट हो गया, देखिए कैपिटल में कंप्यूटर्स आ गया, तो वो स्टोर हो गया आपका बी में, और ये किस तरह का वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू, इसलिए रिटर्न टाइप आपका स्ट्रिंग्स हो गया। तो दिस आर द ना, इतना फंक्शन था स्ट्रिंग फंक्शंस का। अब वी विल स्टडी कैरेक्टर फंक्शंस। कैरेक्टर फंक्शंस वो किस में वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन कैरेक्टर्स ओनली। कैरेक्टर मीन्स सिंगल लेटर पे वर्क करता है आपका। नो कैरेक्टर फंक्शंस आर एज फॉलोज। ना नंबर 1 कैरेक्टर डॉट इज लेटर, तो ये चेक करता है कि जो भी आर्ग्यूमेंट पास्ड है वो लेटर मीन्स अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट है कि नहीं। अगर अल्फ़ाबेट होगा तो ये ट्रू देगा, नहीं तो ये फॉल्स देगा। तो ये क्या है, देखिए पास क्या है, बी क्या है, अल्फ़ाबेट है, तो ये इसीलिए ये आपका ट्रू दिया। तो ट्रू आपका किस तरह का वैल्यू, बुलियन, तो इसलिए रिटर्न टाइप इस फंक्शन का बुलियन हो गया आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप लोग, कैरेक्टर और इज लेटर, पास क्या है यहाँ पे 5, तो क्या ये 5 अल्फ़ाबेट है, लेटर मीन अल्फ़ाबेट, नहीं अल्फ़ाबेट नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स दिया आपका। दूसरा फंक्शन है कैरेक्टर और इज डिजिट,
तो जो पैरामीटर होगा अगर वो डिजिट होगा तो ये ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। तो 5 क्या है? हाँ डिजिट है, कैरेक्टर में डिजिट है, तो इसीलिए ये ट्रू दे रहा है आपका। तो नेक्स्ट एग्जांपल, कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, तो पास किया आर, क्या आर डिजिट है? नो डिजिट नहीं है, तो इसलिए ये क्या दिया आपका? फॉल्स दिया। तो रिटर्न टाइप इसलिए बुलियन हो गया क्योंकि, है ना। तो नेक्स्ट और फंक्शंस हैं यहाँ पे, कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट, तो ये लेटर रहेगा, लेटर मीन्स अल्फ़ाबेट रहेगा तब भी ट्रू देगा, डिजिट रहेगा तब भी ट्रू देगा। लेटर और अल्फ़ाबेट को छोड़ के अगर दूसरा लेटर होगा तब ये फॉल्स देगा। तो देखिए 8 क्या डिजिट है, तो इसलिए ये ट्रू दिया। बी, हाँ ये लेटर है, अल्फ़ाबेट है, देखिए लेटर है, तो ये भी ट्रू देगा। अब आते हैं इसमें कैरेक्टर तो इस, देखिए इसमें ये क्या है, जो भी पास किया है ये ना ही अल्फ़ाबेट, लेटर मीन्स अल्फ़ाबेट भी नहीं है और डिजिट भी नहीं है, तो ये क्या देगा आपको? फॉल्स देगा आपका। दूसरा फंक्शन है कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस, ये चेक करता है कि ये जो भी पैरामीटर पास्ड है वो स्पेस है कि नहीं। स्पेस मीन्स सिंगल कोट्स में देखिए जगह थोड़ा सा एम्प्टी है, मीन्स स्पेस है, अगर स्पेस होगा तो ये ट्रू देगा, तो ट्रू। उसी तरह अगर ये देखिए दूसरा फंक्शन है इज, सेम फंक्शन है इज वाइट स्पेस, क्या पास किया यहाँ पर? हैज़, तो क्या स्पेस है ये? नो, तो इसलिए ये फॉल्स दिया। नेक्स्ट फंक्शन में आते हैं हम लोग, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, तो ये क्या करता है आपका? चेक करता है कि वो लेटर जो भी है वो अपर केस में है कि नहीं। अगर अपर केस में होगा तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। तो सी है कैपिटल ए पास्ट हुआ है, तो ये तो अपर केस में है, तो इसलिए इसका वैल्यू ट्रू हो गया, रिटर्न वैल्यू ट्रू हो गया, डेटा टाइप बुलियन हो गया। फिर उसी तरह कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, क्या है? बी है, स्मॉल बी है, तो क्या अपर केस में है? ये नो, तो ये इसलिए इसका वैल्यू, ये वैल्यू क्या देगा? फॉल्स देगा, तो स्टोर हो गया पी में और रिटर्न टाइप आपका बुलियन हो गया आपका। नेक्स्ट फंक्शन है कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस, तो ये चेक करता है कि वो लोअर केस में है कि नहीं। अगर लोअर केस में होगा तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। तो सी, हाँ टी जो है वो लोअर केस में, तो इसलिए ट्रू रिस्टोर हुआ के में और डेटा टाइप बुलियन हो गया। कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस, सी कैपिटल जी है, हाँ ये कैपिटल जी है, तो क्या ये लोअर केस में है? नो, फॉल्स, गलत, इसलिए फॉल्स दिया आपका। एक पॉइंट याद रखना है आप लोग को, जो भी फंक्शन इज से स्टार्ट हो, देखिए कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट, कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस, डॉट के बाद अगर कोई भी फंक्शन इज से स्टार्ट हो रहा है तो उसका रिटर्न टाइप हमेशा बुलियन होता है। अब नेक्स्ट फंक्शन में आते हैं हम लोग, कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, देखिए डॉट के बाद इज नहीं है तो इसका रिटर्न टाइप आपका बुलियन नहीं होगा, तो टू अपर केस मीन्स अपर केस में ये चेंज कर देगा। तो क्या पास है? स्मॉल जी पास किया हम लोग, तो ये क्या करेगा? स्मॉल जी को अपर केस में चेंज कर देगा। तो हमको क्या मिला आंसर? कैपिटल जी। और कैपिटल जी क्या, किस तरह का वैल्यू है? सिंगल लेटर है, तो कैर वैल्यू होता है, इसलिए रिटर्न टाइप इसका कैर हो गया। उसी तरह कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस, तो ये क्या? टू लोअर केस मीन्स ये क्या करेगा? लोअर केस में चेंज कर देगा, क्योंकि डॉट के बाद टू दिया हुआ है, मीन्स टू कन्वर्ट इनटू लोअर केस, तो कैपिटल टी है तो इसको क्या करेगा? लोअर केस में चेंज कर देगा। तो कैपिटल टी लोअर केस में चेंज हो गया, स्मॉल टी हो गया। और ये किस तरह का वैल्यू है? कैर वैल्यू, एक लेटर कैर वैल्यू होता है, तो इसलिए इसका रिटर्न टाइप आपका कैर हो गया आपका। तो इतना फंक्शंस ना हम लोग का स्ट्रिंग फंक्शंस में था। फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो उसके ना हम लोग प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।